आई वांट टू क्रिएट दैट पल्स वेर इन पीपल की देखना चाहे कि नरेंद्र मोदी या वर्सेस अगर राहुल गांधी हो रहा है तो कितने परसेंट लोग नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, जब मुझे ये याद है कि जब हम डिस्कस कर रहे थे एंड वी रिजेक्टेड द आइडिया एंड देन सो पॉली मार्केट कि अच्छा ये कर रहे हैं, हाउ दिस कैन बी डन. So opinion trading did not excite me at all. So when I saw it as a poll versus the current acceptance of these exit polls and things like that, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के केस में आई थिंक न्यूज़ और जो न्यूज़ बता रही थी और जो पॉली मार्केट बता रहा था, दैट वाज नॉट इवेंचुअली तो इस न्यूज़ वाले पॉली मार्केट को कोट करके अपने स्टैट्स बताते शुरू हुए थे. By the end of the election, that's the we are not here to just create an opinion trading app and run by our competitors like that. Our vision is to turn this into a 100% place wherein you can see what the nation is thinking. उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? India's got latent is a hit in no time. It is probably surpassing everything that is created in India. हम सब में से सबसे लेट रिप्लाई ड्रॉ कौन करता है? स्लैगो. I would basically say it's a financial tool or a financial platform जहाँ आप जाके ट्रेडिंग कर सकते हो. जैसे आप शेयर मार्केट में करते हो, यहाँ पर अपने ओपिनियंस पे ट्रेडिंग कर सकते हो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर से पॉडकास्ट. आज हम यहाँ पे हैं डिस्कस करने के लिए व्हाट इज़ ASR गेमिंग. आई एम हेयर विद माय को-फाउंडर संबित, अंशु एंड अर्जुन. हम लोग ASR के बारे में, ASR की जर्नी के बारे में, योर से प्रोडक्ट को कैसे हमने डेवलप किया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इस ओवरऑल पॉडकास्ट सीरीज़ में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा विजन और हमारे आइडियाज़ क्या थे जिसके कारण योर से प्रोडक्ट डेवलप किया हमने. एंड ओवरऑल आई वुड लाइक एवरीवन टू टेल अस क्या चैलेंजेस हमने फेस किए वाइल डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट, वाइल क्रिएटिंग द टीम एंड वाइल क्रिएटिंग द कंपनी एज अ होल. सो अब हम शुरू करते हैं. आई वुड लाइक फर्स्ट to Sam to start with the introduction. I want Sam to tell us who is Sam, who is Sambit Bose, and how did we come about ASR, हम ASR में कैसे जुड़े, and what are your inputs in ASR. Hi, hello everyone. I am Sambit. Yes, ना आपको अभी तक पता लगी क्या होगा, but you called me Sam, so that is how it is. So basically, we started off with ASR Gaming Network to actually, it happened all of a sudden. It was not on the cards that it was going to be ASR because I myself was looking into something on the KVX there because I had been very inclined towards it. And it happened in a way when I did not expect it as much. So yes, around 2020 end when the COVID hit. So probably from then onwards, there was a lot of time where I could regroup because everybody was at work. So at that point of time, there were a lot of friends who were staying outside. They came here, so we started socializing, tried doing online courses and everything. I wanted to understand the D2C sphere for that time. So at that time, I came across this very, very interesting sphere, which is the gaming sphere, which was growing, which was going like anything because people were home. और से सीन बहुत सारे 332 रमीज ये सब इस टाइम बहुत they were on the verge of getting higher each day. I used to hear numbers. I had a friend associated with one of these gaming applications. So told me how the numbers had gone up. Whereas at that point of time, it was a financial struggle time for all. Everybody was recuperating with their money. They were trying to मतलब सबको ये लग रहा था कि this is a hard time in terms of finances. But I was very, very, very surprised to hear that numbers are going up by it. So this is how it started. Then I went on to dig deep into it or to understand कि कौन कौन से what are the games that they are playing, which are the monetized ones. Before we get into games, I want to know कि Sam की journey कहाँ से start हुई. How did Sam enter into the business industry? What first business did you start? If you ask about me, I was born and brought up in Calcutta for about till I did my till I did my 10th. Then I shifted to Denning. My dad is a government servant. He was a government servant. Now retired. So I came to Delhi after my test, and
I always had a knack doing business, but I eventually after 12th, after during my graduation, I joined the call center to earn money to earn big bucks. So I'll get काम मत वाली story चल रही है. सर कीपिंग सुबह सुबह कॉलेज करके शाम को ये करने लग गए. बस वॉइस प्रोसेस थे. आई हैड अ लिटिल गुड कमांड ओवर माय लैंग्वेज, तो ये मैं यूएस प्रोसेस में हायर हो गया. तो आराम से मैं कर रहा था. आई गेट इट फॉर एंड इवेंचुअली आई गॉट सो मच inclined into it. I missed a lot of my college at most of the times to go for a couple of days. So मतलब वो पैसे कमाने की वो आ गई थी. So I was there for about 3 years. I did it. 3 years I almost did it. Then I got taste from my college. So I shifted to there's got news proofs reading होता है, तो मैं वो करने लगा. For about 8-10 days I did it. I did it with the big company, but it was very monotonous. So I had to eventually leave it. I got back to again I got back to DPOs. I did it for another year. Before I started my first venture, I started importing fabrics from China. So I started importing fabrics from China. How did I get into clothing? Was my girlfriend, who's now my wife, her mother was into exports, and so I used to discuss a lot about garments. When they had their own export house, so there was a big scarcity of imported fabrics here, and I was very keen on doing it. थोड़ा पैसे भी सेव कर लिए थे. फटाफट चाइना गया, वहाँ से फैब्रिक लाया यहाँ पे. I started selling it to export houses. Then eventually क्या हुआ कि from that I got पूछता चला गया, तो पता लगा कि I can get into manufacturing, so that's easier. So I started with 10 machines. I started manufacturing. थोड़ा फैब्रिक बेचते थे. 10-20% का इन्वेंट्री रह जाता था, उससे I started making garments and then I started selling it. Eventually that grew. This happened in 2014. So I started in 2014. In about 2 years, I had about 100 machines, and I was supplying to and online was going up at that point of time. So I was supplying to Agio. I was exclusively supplying to Agio. I was supplying to a big couple of wine houses here. I was doing domestic only. But eventually, when 2018, Quoting to manufacturing. yes, then I stopped importing. I kept importing, but I started importing only to manufacture clothes for myself, because I was only doing B2B. I started doing D2C. I was doing B2B. I did not I did not have the idea of going B2C. If I would have had, probably आज ये मैं वही कर रहा होता. Eventually मैं B2B ही कर रहा था. I used to supply to offline chains and like people like that. So that happened in around 2018. 2018, there was one of my clients who was a Dubai-backed or Dubai fund-backed company who had very quickly in a year opened over 40-50 stores in Delhi. So they came up with the offer of merger, and I was too young to understand how a merger works. So I thought, and इतने उस टाइम पे इतने पॉडकास्ट नहीं होते थे, ये नहीं होता था to understand the plus and minuses or mergers and everything. So they came up with a merger offer, but I eventually, coming from the household that non-business background, so I offered them my company only. I said that if you are buying it, you can take the company, and I thought I'd be starting a T2C differently. मतलब मैं कपड़े ही बनाऊंगा, but मैं अपना ब्रांड अलग से बना लूँगा. ये मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले लेता हूँ, because I figured out that running a manufacturing unit is a big task. You need a lot of vigilance, number one. And mine grew a little too big for me to handle at that point of time. मतलब मुझे थोड़ी सी feeling आ गई थी. Not that I was making losses or anything, but that it had a turnover of around 15 crores a year. So was doing okay. Yet I thought this offer was too good to refuse. So eventually the merger happened, but they asked me to work for them, me and my wife, to work for them for a year. So I did it. I worked for them for a year, and by the time I worked for them to understand the insight, because I knew my business best. So at that point of time, by the time I started working for it, I wanted to take a break, and in a couple of months, COVID happened. So that is how then I already told you. Then I was actually free. I was sitting home, learning about what can I do next. कपड़ों का करने का था, but वो D2C level में था. उसको करते करते events, I kept went into this caving sphere, because I was doing a lot of sheer trading at that point of time. So I understood there's a huge capacity in the
and share trading those time it was going up. The COVID tax. So there was a big unregulated market behind us because then there were problems in people getting it. अब तो बहुत easy हो गया demat accounts. When you say unregulated markets, you said that इतना ज़्यादा इन unregulated market में boom था उस समय due to COVID and everything. Would you like आप इस समय के हिसाब से और आज के और जब आप 2020 की बात कर रहे हो तो हाउ बिग इज द मार्केट कैन यू डिग डीप ऑन द नाउ तो द अंडर देखो ऐसा हो गया कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओपनिंग डीमैट अकाउंट्स वेर अ प्रॉब्लम it was not as easy as it is today. Today you start opening a demat account, you end up opening it in 10 minutes. Probably everybody is tech savvy, everybody is now तो सबको अभी वो हो गया है. Everybody is now ready. सबको पता है कि मुझे अब करना है, अब कैसे करना है, एक बटन दूर है. That's that easy. But प्रीवियसली क्या था उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था अनरेगुलेटेड कुछ हो पाया है. मुझे पता लगा कि देयर इज़ अ मार्केट वेयर पीपल आर डूइंग थिंग्स, देयर इज़ अ मार्केट वेयर पीपल आर छोटे छोटे ब्रोकरेज फर्म्स है, जिस ब्रोकरेज फर्म्स में दे आर पेइंग मनी. एंड अनरेगुलेटेड मतलब क्या है, यू कम टू मी, यू से कि भाई मेरा डीमैट नहीं खुल रहा, आप मेरे शेयर ले दो, अपने अकाउंट में ले दो. तो मेरे अकाउंट में मैंने ले दिया, लेके आपको मैंने एक लमसम चार्ज कर लिया फॉर एग्जाम्पल फॉर the tax that I'm going to pay for the brokerage that I paid. मैंने आपको एक लमसम परसेंटेज चार्ज कर लिया. फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला कि मेरे को 10 शेयर्स ऑफ सम वाटर बॉटल दे दो. दिस 10 वाला शेयर हो गया 15. अब देखो 15 हो गया तो 5 रुपीज़ बढ़ गया, तो आपको 5 रुपीज़ का मिलना चाहिए ना, दैट जस्ट द प्रॉफिट. तो आपको 5 रुपीज़ की प्रॉफिट दे देगा, आपको वो 3 रुपीज़ की प्रॉफिट दे देगा और 2 रुपीज़ वो अपने खर्चे में ले देगा. सो दैट्स अ वेरी बिग कॉर्पस ना. तो वही ऐसे ग्रो करता है, मल्टीप्लाई दैट, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो. जो बंदा पहले आई स्टार्टेड आउट डूइंग इट फॉर यू एंड आई चार्ज यू 20%, आई एंडेड अप पेइंग 8%. ये तो बढ़िया काम है यार. तो दूसरा कोई आया, मैं उसको ऑफर कर दिया कि भाई आप भी आओ मेरे से शेयर खरीद लो, मैं दिला देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम में दिला दूंगा, क्या डीमैट के चक्कर में पड़ोगे. तो दैट इज हाउ द अनरेगुलेटेड सेक्टर ग्रीव. सो उस टाइप पे मुझे पता था देयर इज अ सेक्टर, बट बाय द टाइम आई वाज थिंकिंग देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्स, Grow, Upstocks, which are doing pretty good. And Angel also revamped their system. That came up with a very good application. तो तब उसके बाद धीरे धीरे होता गया. अब आज के डेट में अनरेगुलेटेड का मुझे पता नहीं है. आई एम नॉट इनटू दैट एनीमोर, बिकॉज मैं रेगुलेटेड ही करने लग गया फॉर आफ्टर सम टाइम, जब इतना ईजी हो गया. इट्स अबाउट गेट बैक टू. तो अब आते हैं अंशु पे. अंशु सेम लाइक जैसे सैम ने मुझे बताया अबाउट सैम, हु इज सैम, वेयर डिड ही स्टार्ट. Same thing. I want to understand where Anshu started off his journey and what is he currently doing, and what was your journey like in the business industry and entrepreneurship. So hi guys, I'm Anshu and I've lived in Delhi all my life. I studied here till 12th and then went abroad to pursue my graduation. जब वापस आया तो कुछ समझ नहीं था. वो बैकग्राउंड तो बिजनेस का ही है, वो पूरी फैमिली, बट ये नहीं पता था क्या करना है. एंड इसीलिए अपने मामा के पास जॉब करी 2 साल जबलपुर. वहाँ से सीखा फार्मास्यूटिकल बिजनेस. एंड देन 2012 आई लॉन्च माई ओन कंपनी क्रीम लैब. एंड बाय 2017 ऑलमोस्ट 120 प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च कर दिया था मार्केट फॉर बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. बट वही है कि कभी पैशनेट नहीं था मैं उस काम के लिए. ये तो इधर ही कुछ करना है, काम शुरू कहीं से तो करना ही था. गेमिंग खून में है बचपन से. बचपन में स्ट्रैटेजी गेम्स खेली है बहुत. फीफा अब लाइफ बन गई है. 3 घंटे के सेशन हफ्ते में हो जाते हैं, कभी कभी 12-12 घंटे के भी खेले हुए हैं. तो गेमिंग हमेशा लाइफ में इन्वॉल्व थी. घर वालों ने भी कभी मना नहीं करा. हाँ, कभी मोनेटाइज नहीं कर पाया. अब शायद मौका मिला ना, या सुनी नहीं. मेरी मॉम को भी बहुत शौक है गेम्स खेलने का. वो भी 24/7 कहीं ना कहीं फ़ोन पर लगी रहती है. सो घर वालों की तरफ से ऐसे कोई प्रेशर नहीं है. बट ASR गेमिंग जब हम चारों बैठे एक दिन, वो रियलाइज़ हुआ कि भाई यही फ्यूचर है. और अब फार्मा जो करना था कर लिया. अब करना है तो गेमिंग सेक्टर में कुछ करना है. चल रही है अभी भी कंपनी, बट आई एम बहुत कम उधर ध्यान देते हैं. एंड पूरा फोकस अब ASR गेमिंग में है, योर से जो. सो उसके बारे में हम अब से आज बात करते हैं.
So see, So pharmaceutical industry to gaming. it's a very drastic change. I'm still adapting to it, but yes, but this is the way forward. I feel, and pharmaceutical is बड़ा मुश्किल है यार आज की डेट पे काम करना बहुत ज़्यादा. It's so easy to get into it कि ना आप क्वालिटी कंट्रोल कर पा रहे हो और ना प्राइस कंट्रोल कर पा रहे हो. तो आई वुड नॉट मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा अभी. कभी फ्यूचर में बैठेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो बताऊँगा क्या प्रॉब्लम्स है और क्या नहीं है आज की डेट पर. और जब कुछ ज़्यादा और तब में और आज में कितना डिफरेंस आ चुका है. तो 2012 साल हो गए. तो आप आई सीन ऑल द हाइज एंड लोज. मतलब मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ. वो मेरे को यही लगता है कि ठीक है अच्छा टाइम देखिए अब सही टाइम पे एग्जिट लेना एक कला है. तो शायद सही टाइम पे निकल रहा हूँ एंड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहा हूँ. एंड दैट्स अबाउट मी. Yes, we'll definitely take team inside the pharmaceutical industry and your experience as it. But let's move on. So Arjun, ji, same. I would like to know more about you and who is Arjun? How did he start? And I think out of all of us who have the most experience in the entrepreneurship and business line, so let's get to know about you. Hi guys, my name is Arjun and I'm from Meerut basically. मैं अपनी schooling सारी मेरठ से करी and then in 2008 I shifted to Delhi after my 12th. Delhi आने के बाद I was supposed to go to US for engineering. I had science in 12th. तो कुछ circumstances ऐसे हुए फैमिली की और पीछे कुछ किसी की हमारे घर में somebody पास हो गए तो वो नहीं परस्यू कर पाया और मैं फिर प्राइवेट एजुकेशन करनी पड़ी. और देन मेरी पूरी जो फैमिली है दे आर अ बिजनेस. वी आर अ फैक्ट्री इन मेरठ की मैन्युफैक्चरिंग थी हमारी इनटू दिस बेड शीट्स ब्लैंकेट्स होम फर्निशिंग की. अब यू आर इन दिल्ली वो आप बाहर भी नहीं जा पाए. एक बार आप मेरठ से आ भी गए. अब मेरठ जाना फैक्ट्री चलाना और वो पुराने उससे चल रही थी मतलब जो पुराने मेथड्स थे स्क्रीन प्रिंटिंग वह सब चीज़ें. आई डिसाइडेड कि करना गया. सो थोड़ा सा मैंने होम फर्निशिंग के बारे में पता करा एंड देन आई स्टार्टेड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना माई सेल्फ. अकेला ही गया था 2009 की बात है शायद से. आई वाज जस्ट 19 साल का था. 19 साल में जब वहाँ गया तो जाके देखा कि चाइना कितना आगे हम लोग हमसे इंडिया से कितना आगे है. जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंटिंग के और जो उनकी फैक्ट्रीज़ हैं जो हमारी क्वालिटी है जो उनकी क्वालिटी है ज़मीन आसमान का फर्क. तो कॉम्पीट करना भी उस टाइम पर मुश्किल था. तो मेरा दिमाग चल कि इम्पोर्ट ही करते हैं. होलसेलर्स हमारे पास हैं ब्रांड बनाते हैं और ब्रांड बना के अपनी जितने भी होलसेलर्स हैं और पैन इंडिया तो उनको माल बेचता है. तो वही किया 3-4 साल. अच्छा चला 5 साल 6 साल एंड देन आई क्रिएटेड अ ब्रांड. सेल भी अच्छी थी. ब्रांड बन गया तो घर वालों ने बोला कि ये बिज़नेस तो ज़्यादा है मेरिट से. तो वो फैक्ट्रीज बंद करी. फिर सब इसी में लग गए इम्पोर्ट में ही लग गए थे. 2-3 हम लोगों ने भी स्टार्टेड विथ 2-3 आइटम्स मोर. एक पहले बेड्स थी फिर हम लोगों ने ब्लैंकेट्स भी करे. फिर हमने और भी चीज़ें लानी स्टार्ट करी वहाँ से चाइना से. उसके बाद 2015 के अराउंड देयर इज़ अ फ्रेंड जो मेरा साइंस बैकग्राउंड जो कोटा से मेरा फ्रेंड था. ही वांटेड टू गेट इनटू दिस गेमिंग स्फेयर. उसने कोई ऐप स्टार्ट करनी थी. सो ही डिस्कस द आइडिया विद मी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. हमने डिस्कशन करा 2-3 महीने में उस पर लगाए भी. डेवलपर भी ढूंढा हम लोगों ने पैसे भी दिए. बट देन वो चीज़ कन्वर्ट नहीं हो पाई कि वो अपने उसमें था कि उसकी जॉब भी लग रही है एंड देन उसको ये भी करना है. देन ही उसने चूज़ किया कि इवेंचुअली कि मैं जॉब ही कर रहा हूँ. वो जॉब करने के लिए कर ही वेंट टू बैंगलोर. और मैं अकेला भी कोई इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं. देन हम लोगों ने उस चीज़ को उस वहीं पर रोक दिया. 17 में और अपॉर्चुनिटीज आई कंस्ट्रक्शन की आई वो करा हम लोग. मैंने साइड बाई साइड इम्पोर्ट वगैरह चल ही रहा. 20 अगेन आई मेट अच्छू कोविड में. सर्जिकल एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हम लोगों ने. बड़ा ब्रांड है इंडिया से बाहर का इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने ली उसकी पैन इंडिया. उसमें अच्छा करा. वो भी अभी चल रहा है. दैट इज़ ऑन ऑटो पायलट. कुछ बिल्ड टू शिप टू ये बेसिकली वो भी चल रहा है. अपना एक बोर्ड वाला भी चल रहा है दैट माई ब्रदर इज टेकिंग केयर ऑफ. और चल रहे हैं. एक्सपीरियंस है 15 साल का बिज़नेस का. तो बिज़नेस ही करना था इवेंचुअली. लेकिन बैक ऑफ माइंड गेमिंग का कुछ करना है. कोई ऐप बनानी है क्योंकि गेम में स्टार्टिंग से ही था कि गेम करने कुछ ना कुछ ऐप बनानी है.
तो अब जब आपसे मिले, संबित से मिले थ्रू संबित, तो ये वाला आइडिया सामने आया। एंड देन हम लोगों ने फिर उसको जब बैठे, आपको पता ही है, फिर हम लोगों ने भी वेरी आई वाज द वन वाज वेरी एक्साइटेड कि करते ही करते हैं। और उसी को फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा और सर कंपनी फॉर्म करके आज हम यहाँ बैठे सब राइटर्स। दुखतीनेस थी मतलब वो दुख देसी दिखतीनेस, सबकी दुखतीनेस सरे ही दुखती, सबसे दुखती थी बिकॉज वो पहले स्टार्ट करो यही करा स्टार्ट करके अनसेरेमनियसली बंद करना पड़ा वो। अब उसमें 3-4 महीने तो नहीं, मेरे ख्याल से 1 साल ही दिया था हमने। काफ़ी पैसे भी लगे थे, डेवलपर अच्छा नहीं बोला था हम करने के लिए कुछ। वो ऊपर से 2015 में मुझे लगता है बिजनेस करना भी टेक बिजनेस क्या मुझे इतना वो स्ट्रीमलाइन नहीं था। and entrepreneurship on the floor was not the celebrated thing. The 2015 में But I think that was a very good time for me to enter to gaming at that was. It was just that I didn't get the right people around. ना डेवलपर मिला, फिर जो मेरा फ्रेंड था वहाँ चला गया और अब इतना वो था नहीं, ट्रेंड थी था फंडू बदल रही करती है। This was not the center of entrepreneurship. ये basically section नहीं, हाँ, Delhi was not the place to build startup, but in 2015 probably. वैसे तो Zomato build हुआ, इतनी सारी companies in Mobi and everything हुई है। Very good time. but that was the time या फिर नहीं when people Zomato की बात करो, स्विगी की बात करो, सबकी बात करो, तब कोई नहीं था, तब तो सब बन रहे थे। I believe Dream11 was probably the one. Dream11 था, एक और मेरे ख्याल से कोई था, Dream11 भी तब शुरू ही हुआ। तब उस समय सारे शुरू हुए। बट दैट वो जो आइडिया था वो चेस पे था, और बहुत ही डिफरेंट था। वो आज भी कोई नहीं कर रहा, वो बहुत डिफरेंट आइडिया था, चेस पे था, बहुत एक्साइटिंग था, बस वो हुआ नहीं। आप हो रहा है, अब तो उससे बहुत बेटर हो रहा है। अब और उससे बहुत बेटर हो गया था, सबर का फल मीठा होता है। ये सबर करके अच्छी चीज़ पे दैट इज मेंट टू बी। That's Rohan, you tell us about yourself, boss, where everybody knows about you. Who is Rohan? I'll speak for myself. Okay? Yes. So, out of all of us, I am the one who is the engineer. So I met Samvit, जो जिम कर रहे थे, I think वर्कआउट कर रहे थे. So we started talking, and as far as me, my journey of entrepreneurship and everything, मेरी जर्नी कॉलेज में ही स्टार्ट हो गई थी. आई स्टार्टेड विद दिस इनएक्टस, जो कि एक वर्ल्ड लेवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रमोट करती है टू डू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीथिंग रिलेटेड अराउंड इट. तो वहाँ से स्टार्ट करा. समझ आ गया कि अच्छा जॉब तो नहीं करनी, करना तो बिजनेस ही है. जबकि पेरेंट्स को सबको ये होता है प्लेसमेंट्स में बैठो, जॉब करो, एवरीबडी वांट्स यू टू गेट इनटू दैट स्पीड कि जहाँ पे आपकी और अच्छी सी पैकेज लग जाए. बट पता नहीं क्यों रिबेल विदाउट अ कॉज था कि नहीं बिजनेस ही करना है, आप कुछ तो अलग ही करना है. प्लेसमेंट हुई नहीं, बिजनेस हुआ नहीं, थोड़ा बहुत करते रहे. बट आई स्टार्टेड विद अ मार्केटिंग कंपनी आफ्टर कॉलेज. मतलब पास आउट हो गया, कुछ छोटी मोटी जॉब्स करी, बिजनेस एनालिस्ट दिस दैट. बट देन आई स्टार्टेड विद अ मार्केटिंग कंपनी और टेक डेवलपमेंट कंपनी इन 2019. तो उस समय पे यूएस के प्रोजेक्ट्स, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक कज़न था, started building websites and everything for them. Started also did marketing for. My dad was posted in Delhi, and he was handling UCO Bank's zone of Chandigarh. उस समय पे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो कहीं ना कहीं रेफरेंस के थ्रू और चंडीगढ़ के जोन में उनके लिए मार्केटिंग करी, वेबसाइट्स बिल्ड करी. बट देन आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दी क्रिप्टो इंडस्ट्री. थे एक छोटा सा नैक था कि क्रिप्टो में कुछ करना है. बिटकॉइन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता था, बट एवरीबडी वांटेड टू नो अबाउट इट. थोड़ा सा कॉलेज में आज भी शायद अगर ज़ेप्पे का अकाउंट खुल जाए किसी तरीके से तो शायद एक आधा बिटकॉइन लेते हैं, बट वो खुलेगा नहीं. तो या तो started working with this company called La Token as a growth consultant. Work with some big projects around the globe. तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम किया around 3 to 4 years, and then started a gym somehow with a friend, and ran that for some time. Built it around Delhi NCR area. उसको build किया, and वहीं पे ही सैम से मैं मिला, and we started for about a month. वो मेंबरशिप बेची,
पहले मेंबरशिप बेची, फिर प्रोडक्ट आइडिया बेचा, बीच में ट्रेनर भी बेचा। हाँ बीच में ट्रेनर भी है, तो वो तो सबसे बेलिस्ट जो कि बीटी सबसे बेलिस्ट, वो तो आज भी हर महीने का स्टक है, हर साल की फिक्स है रिफंड है और रिफंड है, तो कोई भी मैंने बी फ्रेंडलीज देखी कि मैं 6 महीने करूँ तो 6 महीने के पैसे वापस ले पाऊँ कि भाई बाकी 6 महीने नहीं कर पाए। हर साल का फिक्स बजट है, पीटी को पैसे देना हाँ, और फिर मो जाना। फिर नहीं जाना। करेक्ट, दैट इज हाउ वी बी एस, दैट इज हाउ वी गेट मनी। तो हाँ, उसके बाद देन ASR केम अबाउट एंड ADR, 4 of us बिल्डिंग इन ASR भी बता दूँ ना भी ASAR हमने कैसे किया। हाँ, बिकॉज हमें कोई नाम तो मिला नहीं। वी डिड टेक, आई थिंक मेरे पास अभी भी गुड आईडी पे 20 अलग अलग डोमेन है जिसके अंदर आप हैं। वो नाम लेने दिया वो इस आपके पास होंगे 2-2 3-3 4 सबके पास होंगे, सबके पास होंगे मतलब। कोई नाम, मेरे ख्याल से हमारी 4 मीटिंग्स तो नाम भी थी, 4 इसकी डिस्कशन भी थी कि नाम क्या रखना भैया। यार मीटिंग, स्टारबक्स, कोस्टा, कॉफी शॉप, लगे 15-20 हज़ार रुपये लग गए नाम दोस्त कॉफी सैंडविच ही खा खा के। तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था इस सब का, तो हमने ASR कर दिया इम्पैक्ट। बट इट मीन्स अंशु, अर्जुन, सैम, रोहन, ASRAR। सो और हिंदी में भी इसका एक मीनिंग है असर। Impact. It happened. So that is how the chronology came about. So ASAR instead of ASR or SAAR, he हुआ कि उस piece और is असर, and there's an impact. तो पहले अर्जुन आया, फिर सैम आया, फिर अंशु आया, फिर रोहन आया। अब अर्जुन और अंशु आपस में लड़ ले और पहले वो आपकी इंटरनल फाइल है। हमारे में नहीं। We are clear. So yeah, that's the intro part, and that's how we came about ASR. Let's move on to the next topic, and मैं अब डिस्कस करना चाहूँगा about the ASR overview of ASR. Now I would like us to discuss more about, हमें नाम के बारे में पता लग गया ASR. Let's dig deep inside कि क्या है ASR. Sam, would you like to tell us? So ASR is basically again impact. So we are trying to create an impact in the gaming sphere to be precise. Before we jumped into finalizing a product, there was a proper understanding of which gaming product are we going to do. There's a lot of the gaming is coming up. Everybody knows कि gaming sphere में since the big names are drawing big investments and everything, so gaming was a very exciting part to get into. So when we got into monetized gaming, which is also called real money. So when you got into real money gaming, there are very few which are real money gaming. To be very precise, number 1 is poker, which is the biggest probably, I think so. And then there are Rummy, which is as big also, Ludo. Because poker players से ज़्यादा Rummy players है। मतलब just a myth that people say कि poker ज़्यादा lavish game होगा, but Rummy के players are there everywhere, even in cities that we don't know of. So Rummy is a law of हर household में एक player Rummy का होगा, and there are different kind of Rummies. मेरे घर में मतलब my father and mother are very active Rummy players, because we generally हम लोग घर में 4 लोग बैठ के Rummy खेल लेते हैं, so it's like that. So then there's Rummy, then there's this thing, but what drew all of our attention and we were keen on going on one thing was Coping A3. It happened to me when I came up with the idea of opinion trading. It was basically fantasy was the biggest real money gaming जो सब कर रहे हैं, which is coming every day, probably every second day there's a new company coming out. So fantasy was first in our minds, but then we saw पॉली कोई compete नहीं कर सकता। there's no chance. But it's very big. Even in Regal is built big also. Now that you see that the time that they have given time when Arjun probably would have started his business, अगर वो तब से time देता तो आज उसका business भी इतना बड़ा होता, because it's a different sphere. So the first mover advantage भी नहीं है, first mover capture भी है. They created the industry. उन्होंने actually industry बनाई है। They are a vision, मतलब पहले ही। And the point is कि कोई second कहते हैं ना first mover advantage जो है, उनको ना वो advantage cater करने का काफ़ी टाइम मिला। तो till the time a big player came in, it was a मतलब pretty good time. मतलब मुझे याद है कुछ टाइम तक सिर्फ फैंटेसी ड्रीम 11 भी होता है, एंड फैंटेसी मैं 1999-2000 में फैंटेसी
करता था जब मैं एविड मतलब वो फॉलोअर था, बार्कलेस प्रीमियर लीग फॉलोअर था जो फेसबुक पे हमारे ग्रुप हाँ इनफैक्ट तो वहाँ उसको ऐसे मोनेटाइज करके इंडिया पे देंगे तो nobody thought of it. So they gave us they made the way for us at the industry basic. So what I came across a platform called Polymarket outside which is operating in US. It's basically a Web3 based platform only. So Polymarket, and then there's another called Kalshi. So I saw an advertisement on an internet with a very eminent question of something with जिसका एक पोल था Polymarket. So basically what struck me was that there is Polymarket is serving as a pool. So what happens is कि जब आप कोई भी opinion देते हो अपना, what is opinion trade? Your say, how did your say happen? What is opinion trading? I'm coming to that. अब opinion trading क्या है? Opinion trading is giving your opinions. अब I run around the road and come to you and ask you कि भाई पानी की कंपनी कौन सा बेटर? If you're moving around आप सोचोगे भी नहीं कि कौन सा बेटर है, आप एक नाम ले दोगे और चल दोगे just to shoo me away. So that's one way of giving opinion, which is happening these days with exit polls. If you see the last 4 to 5 exit polls, उल्टे ही है सब उल्टे सब. Whereas सब my कुछ हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ. Whereas my dad used to say that exit poll used to be poll. So, मतलब almost polls. So, जो polls है वो exit poll. Correct. पिछले 5 से 6 exit poll अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग मीडिया हाउसेस में एग्जिट पोल्स में डिफरेंसेस हैं. सो इफ यू वांट टू नो दैट क्या पोल है एग्जैक्टली, तो आपको कैसे करोगे? आप कैसे मीडिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. हम मीडिया पे इस टाइप ट्रस्ट कर नहीं सकते फॉर एग्जिट पोल्स. तो यू नीड अ प्लेस वेयर यू कैन सी द पोल ऑफ द कंट्री, राइट? पैसा है बोल दो उससे बोलो कुछ है ही नहीं What people think about it, कहाँ सबकी सोच है, कहाँ सबका इंटरेस्ट है. As if it is. अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम कि आप पोल ओपिनियन एग्जिट पोल कैसे लिया जाता है? लोगों से पूछा जाता है. अब लोगों के पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो लोगों ने तो कुछ भी बोल देना है. उसने किसी ने वोट नहीं किया, वो एग्जिट पोल का पार्ट है. तो व्हेन यू आर पुटिंग इन सम मनी, मे बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, nobody likes flashing your opinion you're packing, you're putting your money where your mouth is. So you're putting your money where your mouth is. You know that 67% people have said that yes, India is going to win the Border Gavaskar Trophy. That means those 67% are telling him because they know it. So that's the poll. That's the poll of the country. That's the pulse of the nation, right? That either the nation wants it. So for some things there is favoritism which comes in. There are some things like cricket, but for generic matters like elections, probably a new election commission, probably a new एनीथिंग यू कॉल. कोई भी पॉलिटिकल कुछ भी बात कर लो, कोई भी चीज़ नहीं आने वाली होती है ना, तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग बैक कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए भी आप देखोगे देयर आर थिंग्स. सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट दैट पल्स ऑफ द नेशन. आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट पल्स वेर इन पीपल की देखना चाहे कि नरेंद्र मोदी या वर्सेस अगर राहुल गांधी हो रहा है तो कितने परसेंट लोग नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आर बिकॉन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो वो योरसे पे आके पोल चेक कर पाए और उनको पता हो कि व्हाट आई एम सीइंग कि यही होना चाहिए बिकॉज यू लव मोदी. सो दैट फॉर दैट रिलेटेड. सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर. देन आई केम अक्रॉस companies who are doing it in India. They're doing it and it is a proven concept right now. So that was a big tap on my back. It's a proven concept. Shudu say that fight of letting people understand that what Polymarket is or how Kalshi works or what is opinion trading, that was out of question. So the development time shortens up. So that was pretty much okay, and it's a very, and whoever is doing it are doing pretty well. They are. हमारे बीच में कोई ऐसा भी मोमेंट था, आई डोंट सीम टू रिमेंबर दैट, कि ये था कि एक यूरेका मोमेंट था कि अच्छा अब तो हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, जब मुझे ये याद है कि जब हम डिस्कस कर रहे थे एंड वी रिजेक्टेड द आइडिया एंड देन सो Polymarket कि अच्छा ये कर रहे हैं, हाउ दिस कैन बी डन. Yeah, it came as an actually क्या था कि what we failed to understand was we did not see it the way it is. Or the Polymarket, so opinion trading did not excite me at all. The opinion trading के लिए मुझे excite हुआ, but जो outcome को when I saw it as a poll versus the current acceptance of these exit polls and things like that,
That's huge. Recently, अभी कमाला हैरिस, I don't know कब, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के केस में आई थिंक न्यूज़ और जो न्यूज़ बता रही थी और जो पॉली मार्केट बता रहा था, दैट वाज नॉट इवेंचुअली तो इस न्यूज़ वाले पॉली मार्केट को कोट करके अपने स्टैट्स बताते शुरू हुए थे बाय द एंड ऑफ द इलेक्शन एज का ये पॉली जस्ट तो रैपल करके बोल रहे हो ऑन पॉली मार्केट ये चल रहा आफ्टर दिस पॉली मार्केट इज सो बिग ड्यू. अगर कल ही एक ब्रायन एडम करके बंदा है जो हु इज ट्राइंग पेरेंट्स सीधे रह जाते हैं. नहीं ब्रायन, आई डोंट रिमेम्बर उसका, वो जो who's trying, who's putting so much money कि वो यंग रह सके, वो बेटे का, अच्छा दैट गाय, उसके नाम पे अभी पॉली मार्केट पे पोल चल रहा है दैट विल ब्रायन एडम be more young or old, something like that. I don't remember. Here, forget it. I saw this reel few days ago where I saw this Kalshi's founder was walking by the famous New York street, Manhattan street. So he said, somebody asked him that day, well, Daniki, what do you do for a living? So he said that I am Kalshi's this thing. So when he showed a billboard which showed Donald Trump versus Kamala Harris में basically what is the current likey, ठीक है. So that was so overwhelming to see कि there is a platform wherein you can go and check that what people are doing, how are people throwing their opinions. So turning this trading in opinions into a pulse of the nation is what our mission is. We are not here to just create an opinion trading app and run by our competitors like that. Our vision is to turn this into a 100% place wherein you can see what the nation is thinking. For example, if you ask my vision board is probably कोई भी बड़ा इलेक्शन हो रहा हो, उस बड़े इलेक्शन में all news channels are showing your says opinions. So that's what the idea is. The idea is not about running an opinion trading application only, but also something like this. So this is how your say happens. So And the best part is that you are converting your opinion into a financial asset. right. You have the opportunity to earn something on a Monetize कर सकते once I get up it. And that's what our platform yours is also. would you say कि yours is a product जहाँ पे हम एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या हम एक ओपिनियन पोल के लिए एक ऑल्टरनेट क्रिएट कर रहे हैं? व्हाट हाँ, दोनों चीज़ें. एक तो जैसे सैम संबित ने बताया कि पल्स ऑफ द नेशन, ये भी पता लगता है इलेक्शंस में. या कोई मूवी रिलीज़ हुई है कि वो देखने जाएंगे नहीं जाएंगे, वो इट बी अ हिट, राइट? आप किसको वोट करने जा रहे हो, अगर आप एक ओपिनियन दे रहे हो अपनी और उस पर आप कुछ अपना एक अमाउंट भी लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आप जब इलेक्शंस में जब आपका नंबर आएगा आप वोट वहीं देने जाओगे. अगर 65% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी विल विन, या कोई XYZ कोई भी जिसको बैक कर रहे हैं, अगर वो उस पर अपना लगा रहे हैं अमाउंट, इट मीन्स दैट दे आर बैकिंग हिम और हर. तो वो वहाँ जाके उसी को वोट करेंगे. दैट इज़ द पल्स ऑफ द नेशन, एंड थ्रू दैट दे आर अर्निंग ऑल्सो. सो बेसिकली इट इज़ अ फाइनेंशियल एसेट ऑल्सो फॉर देम, थ्रू विच दे कैन टर्न देयर ओपिनियन इनटू अ अर्निंग अपॉर्चुनिटी बेसिकली. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही, अगर आप आज की डेट में अगर कभी भी व्हेन यू गो फॉर अ मूवी, सच अ गुड थिंग दैट ही पॉइंटेड आउट, कोई मूवी देखने जाना हो, यू वांट टू गो आउट, यू वांट टू सी द रिव्यू ऑफ द मूवी, यू विल सी 5 to 10 डिफरेंट प्लेसेस शोइंग 10 डिफरेंट रिव्यूज. कोई 2 स्टार, कोई 1 स्टार, कोई 5 स्टार. इट इज़ ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी टू से बट इट्स ऑलमोस्ट पेड. सो फॉर अ कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मूवी अच्छा है या नहीं है, तो वो कैसे समझे? They can come to our website, they can come to your say, and they can check the say of the nation. So if the nation says that it's a box office hit, 70% or 80% people say that it will make 100 crores in the next 7 days, that means that the movie must be good. Movie अच्छा है. तो राजीव मसंद और INBB को कंबाइन कर देंगे. Exactly. At real time. So this is the beauty of opinion. So now if you're talking about opinion trading as an earning perspective, सबसे बड़ी बात, आप गए, आपने एक मूवी देखी, वो मूवी आपको बहुत अच्छी लगी, आप सीधा आए, आपने बाहर आके यस आपने बोल दिया विल इट मेक 100 crores in about the next 10 days. आपने बोला द मूवी इज़ रियली गुड, आई ट्रस्ट द मूवी, आई ट्रस्ट द मेकर्स, आई से यस. सो यू डू वन थिंग. नंबर 1, आपने पहले मूवी देख के जो एक स्पेंड किया है, आप उसको यू कैन कम बैक एंड ट्राई गेटिंग इट बैक फ्रॉम हियर, एंड इट्स अर्निंग प्रोस्पेक्ट फॉर यू. सेकेंड,
यू आर मेकिंग इट ईजियर फॉर अदर पीपल. सो समबडी हु कम्स इन, एक अगला बंदा 4 मूवी आई हुई है, एक मूवी देखने जाना है, वो सीधा योर से पे आएगा, 4 मूवी का देखेगा, जिसमें देखेगा 85% लोग कह रहे हैं या 90% लोग कह रहे हैं कि दिस विल मेक 100 crores. That means that's a good movie. So that's you get your answer. You either go to Book My Show, you book your ticket, or probably anything, anywhere, wherever you go book your ticket and you go. So this is a 10-minute process. उससे पहले क्या है अभी, भाई मूवी देख के आया, बहुत बढ़िया थी भाई, किसी और को फ़ोन किया, अरे भाई बेकार थी, बेकार नहीं बोलते, कुछ और ही बोलते हैं. तो वो तो लोग तो मजे भी लेते हैं. हाँ कि देखने जाए क्या पता तो लगेगा. बहुत अच्छी मूवी थी, देख के आओ, मजे वाली है. मैं तो देख के आता हूँ तो मैं तो पक्का बोलता हूँ भाई चला जा. तो ये इसने मेरे से बहुत बांग किया है. अब आप ये बोलते थे भाई और से मैंने तो 100 रुपये लगा, फिर बता रहा अपना पोल दे, उसके बाद बात. तो मेरे स्क्रीन शॉट गई. ठीक. तो हम क्योरसे के बारे में इतना डिस्कस कर ही रहे हैं, तो अंशु, why don't you go ahead and tell us about कि क्या, what is Yorse, what is the product, and or where is the current stage at Yorse? So if I want to explain it in simple terms किसी एक बंदे को कि भाई और से है क्या, I would basically say it's a financial tool और a financial platform जहाँ आप जाके ट्रेडिंग कर सकते हो. जैसे आप शेयर मार्केट में करते हो, यहाँ पर अपने ओपिनियंस पे ट्रेडिंग कर सकते हो. 1 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, 100, 200, 300 जितने आपकी लिमिट है एक क्वेश्चन पर ट्रेड करने की, वो आप कर सकते हो. इट्स वेरी इजी टू यूज़, वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड मल्टीपल टॉपिक्स हैं. मैं आपको एग्जाम्पल कैटेगरीज बताता हूँ. स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप Formula 1, क्रिकेट, फुटबॉल, you can give your opinions on any match, specific match, any player. मल्टीपल क्वेश्चंस हैं इन ईच कैटेगरी. एक तो होगी स्पोर्ट्स कैटेगरी. सेकेंडली आप डेली आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में जितने भी करंट अफेयर्स है आप उन सब में अपने ओपिनियंस दे सकते हो. मतलब इट्स सो इजी टू यूज़. आप वेदर के ऊपर हम अपने प्रोडिक्शंस दे सकते हो. प्रोडिक्शन तो नहीं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, इफ़ यू फील कि हाँ आज दिल्ली में वेदर ठंडा होने वाला है या गर्म होने वाला है, तो you can trade on that. Wherever you feel that you are it's interested. current affair हो गया. You can even give your opinions on Bollywood, Hollywood, YouTube as well. आप एग्जाम्पल मिस्टर बीस्ट का एक नया Amazon पे शो आ रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. इट्स बेस्ड, आपने अगर उसकी एड वगैरह देखी हो तो देर आर यू कैन गिव योर ओपिनियन कि भाई ये कितने मिलियन लोग देखेंगे, कितने मिलियन व्यूज़ बनेंगे, हाउ मच इज गोना मेक आउट ऑफ इट. तो मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल क्वेश्चन, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड एनी वन कैन यूज इट. इफ़ यूर अ स्टूडेंट, यू कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, मतलब बस 18 साल के होने चाहिए. Try to make it so simple कि किसी भी कैटेगरी इसी यू डू नॉट बी वेरी टेक savvy और तो यहाँ पे इस टाइप की और गेम्स खेले हो ज़रूरी नहीं है. आप आओ, इंस्टेंट आपको समझ आएगा क्या करना है. येस और नो ही तो है, 2 ही चीज़ें कर सकते हो. और ये सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप और मैं. कोई बात करते हैं आज अगर कि भाई कल बारिश होगी फॉर एग्जांपल, तो भाई ऐसे तो बोल दो कि हाँ होगी या नहीं होगी. या फॉर एग्जांपल कि यार विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, तो आप कहते हो हाँ जी मारेगा, मैं कहता हूँ नहीं मारेगा. वो कब वो सीरियस हो जाता है, कब आप विराट कोहली को फॉलो करने लगते हो, कब आप देखते हो कि हाँ भाई अब बना रहा है या नहीं. ये तो बोल के शाम को बैठे ये बात बोली, सुबह भूल गए कि यार उसने वैसे शर्त लगाई थी, ऐसे ही मुँह तुम बोली शर्त. अच्छा, जहाँ वो लगी 10-10 की हो जाती है, लगी 100-100 की हो जाती है, वहीं उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई अब तो ये देखना है, अब तो करना है, मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ. अगर मैं बोलता हूँ चल भाई 500 रुपये की शर्त हो गई, विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जाके विराट कोहली उस ग्राउंड में खेल रहा है, तो इस ग्राउंड में इसका क्या रिकॉर्ड रहा है. इसके लिए हमारी एप्लीकेशन में हमने AI इंटीग्रेट करा हुआ है. ओवरव्यू, हर क्वेश्चन में एक ओवरव्यू है. मतलब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हर चीज़ की कि अगर ये मैच है तो पिच कैसी है, वहाँ पर पास्ट 10 मैचेस में क्या हुआ है. सिमिलरली फॉर यूट्यूब अगर मैं बात करूँ, मिस्टर बीस्ट ने 2 महीने पहले ये वीडियो डाली थी, इसमें इतने व्यूज़ आए थे इतने टाइम में. क्रिप्टो मार्केट क्या कर रहे हैं, मैं तो भूल ही गया बताना. क्रिप्टो मार्केट मतलब आप अगर आज के डेट में क्रिप्टो और ट्रेडिंग करने जाओ, यू नीड ह्यूज कैपिटल. मैं तो आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप 10 रुपये में अपना ओपिनियन दो कि बिटकॉइन अगले 15 मिनट में कहाँ होगा. एवरी 10 मिनट्स एवरी 10 मिनट्स ये आपको आप रिपीट पे कर सकते हो. आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है या आप इतने टेक सेवी नहीं हो कि आप बिटकॉइन आप कहाँ से लो, कौन सी एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, कौन सी नहीं है. तो दैट इज़ द स्टार्ट कि वहाँ से अगर आपको ये समझ आ गया कि अच्छा बिटकॉइन की ट्रेंड कहाँ जा रही है,
and then probably you can start trading it to real markets as well. And I know a lot of people who have very different interests. For example, my sister has got she's very interested in Formula One. She's very interested in lawn tennis. She doesn't know the 11 players in Indian cricket team. SNE sports fanatics and are not cricket fanatics. So everything is centralized to cricket in India at least. So वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है. तो you feel more people. There are a lot of basketball following in India. Very big basketball following in India. चेस बास्केटबॉल टेनिस की बहुत है फुटबॉल की बहुत है एवरीथिंग इज फॉर अ फ्यू उसको कितने लोग follow कर रहे हैं? India's got latent is a hit in no time. It is probably surpassing everything that is created in India. Everything that's यार यूरो समय but still, man, and all of a sudden, it's a totally different concept. Things like Comicstan has happened, things like other things have happened, but वो उसने फोड़ा नहीं है इंटरनेट. ये तो इन्होंने तो फोड़ दिया इंटरनेट. तो this is probably the biggest thing that has happened to YouTube right now. तो कह रहे हैं इतनी जल्दी और he started selling memberships in no time. So understand कितने लोग follow कर रहे हैं. तो बहुत लोगों को interest ही YouTuber से है. They're looking up to Samay Raina to become the next Samay Raina. So how do they put their interest into earning money? They can see the last 10 videos में कैसा किया उन्होंने and then say yes, Samay Raina will touch 1 crore views in probably 7 days. So that's how the question is framed. I'm just giving an example. So he knows that it will frame. तो ऐसा हो ही जाएगा. ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा है. इसमें कोई फॉलो करता है कि उनका मेन है कि the judges panels are selling also. So he's being very new judges panels. नए judges ला रहा है जो apart from Samay and the other guy, I forgot his name, but Balraj. बाकी 3 लोगों को रोटेट करते रहते हैं. So they getting good people. They're getting people like Poonam Pandey, Rally Sawal, और फिर दीपक कालरा, दीपक कलाल. ये लोग आ रहे हैं. ये लोग सब घुस के आ रहे हैं तो लोग इसीलिए देखने जा रहे हैं. तो जो फॉलो करता है समय को उसको पता है नेक्स्ट एपिसोड में कौन है जज पैनल. तो he can always trade on his opinion on that. So it's like under one umbrella. Anything that you like, anything that you like. डेली लाइफ के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं इसमें सब कुछ. आप अपना अपना ओपिनियन लाओ और उसको ऐसे लगाओ पैसे पाओ और ये लोग लाओ पैसे कमाओ. So it's like that. But what we have tried doing here is few things we have kept in mind, which is very important. We tried to get the most secure environment because it is a proper 100% legitimate way of putting in money because we did our TDS. So we are taking important information, KYCs. So it is proper. The environment is such. We had to create a very secure environment. We had to create a very user-friendly environment. With round the clock compliance team working. Yes, we have got round the clock compliance. We have the first thing that the redressal was the first thing that the grievance redressal was the first thing that we put in place. And Anshu being the sweetest person amongst us, probably he is the head of redressal team. So probably कोई भी आता है तो हम लोग तो फिर भी एक बार को we can lose our patient, but I can blindfold करके बता सकता हूँ कि Anshu can never lose his patience. So he's the best guy in the best days. So the grievance redressal system is in place. The secure environment is in place. We have tried to make it a triple secure environment. We have got the best people to look at the security first. We have got the best legal team around us to understand that what we are doing around us is perfectly right. I think that is the biggest thing we've done so far is that we've created the best team in every department. चाहे वो हमारी engineering team, super engineers that we have got from around the states. We got a bit lucky in that. Probably. The first time also कुछ time so the development time थोड़ा बड़ा हो गया था. बस generally आज develop करने जाऊँ तो शायद कम से कम, but eventually it was very important to get the right team. I think team is the most important part when you're creating a tech company. They've created legal team, engineering team, marketing team. Everything is top notch. And since it's a money base of the application, what we are trying to do is we're trying to give in the customer service. Also, we're trying to put in at least a customer service for a 24-hour thing going forward. So these are the small things which was very important, जिसको हमने कभी compromise नहीं किया to go forward. But apart from that, अगर आप simple भाषा में कहोगे, we wanted to give you the best user experience, and we are already on the verge of doing it. And also the exciting part is, I'm not spilling all the beans right now. We are also trying to create a pool-based
gaming product inside of the application apart from the basic thing. So the dream of spending 10 and earning a lot is also in place. So all in all, the experience is going to be very different from wherever you have gone. So that's what we feel we are trying hard day in day out for. So let's see. Let's hope everything goes well. And about where is yours right now? We are almost under the internal testing phases. So probably by the end of this year or by the time you see this podcast reaches you, probably it will be in your app stores or your Right, so mobile calls only. when the singing mobile phone does not come out. So we move towards the end. But before the end, this एक quick rapid fire करना है, and I'll say a question, and you have to just name the person who you think the answer to that question is. It's a the questions are framed कि हम में से कोई एक उसका आंसर है, as in कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर सैम, अंशु, अर्जुन, रोहन कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी टीम ने नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नहीं है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हम सब में से सबसे लेट रिप्लाई ड्रॉ कौन करता है स्लैग ग्रुप? अर्जुन एंड स्टॉप, मेरा काम ही होगा इसमें। अर्जुन को पॉइंट आउट करने के लिए तो नहीं है क्या कुछ है कि नहीं? मैंने कहा जी टीज ने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, ये स्लैग के है। भाई के बोलो स्लैग चल रहा है, वो देख लो एक बार। तो स्लैग चल रहा है, डॉक्टर भी नहीं बता। तो दिस इज अ रिमाइंडर अर्जुन की स्लैग डाउनलोड। ये क्वेश्चन नहीं है, ये दवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा को फाउंडर गेमिंग के नाम पे चीट करता है? और सच बता दे इसके बारे में। गेम में कौन चीट कर सकता है हम में से? कोई नहीं करता। शर्मा सर पहले शायद मैं कर लेता, अब बड़ा हो गया होगा। से कोई चीट नहीं करता। पहले बचपन में करते, चीना कोच तक आगे एज ऑफ एम्पायर मर्सिडीज घूम रही है, इसी का कासल उड़ा दिया, ये सब तो करते थे। आप तो यही करेंगे। आई थिंक हमारी टीम ने इसने लिखा था कि उनको पता लग जाए किसको पकड़ना है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीटिंग कर सकते कि टॉस एक्चुअल क्रिकेट खेल रहे, टॉस में हेड आया, उठा के टेल बोल दिया, बस ये कर सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस में सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेटर कौन है? आई थिंक ये टीम के ऊपर बताओ, कौन हमारे एम्प्लॉइज में से कौन सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेटर? आर्या, यू विल बी अ बेटर जज। राजदीप, धीरज, ये बीट आई थिंक कोई नहीं है। ये रैपिड फायर था, ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिट करके रैपिड बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम में से व्हाट इज योर फेवरेट गेम टुडे? मेरा तो फीफा है, और मेरा आईडी है सबका फूफा। कोई आ जाओ खेल लो। गेम्स खेलते नहीं है कि बाइनेंस, मतलब गेम्स खेलते नहीं ज़्यादा। नहीं, मेरा एक गेम और फेवरेट है जो मैं दिन के 25-30 प्लेट्स गेम खेलता हूँ, chess.com पे। वेरी गुड चेस सुबह 25-30 गेम खेलता है। मीटिंग भी चल रही होगी, इससे कोई कुछ पूछ रहा होगा, ये नीचे देख, अगर नीचे देख रहा है ना फोन में, तो उससे पता है ये चेस की ये टीम है सबका। बचपन में था यार बहुत क्रेज, मारियो वारियो का था, टेकन 3 का था, बचपन में बहुत खेलते थे। बचपन में मैंने 6 क्लास तक खेले हैं, उसके बाद नहीं खेले। नहीं, मैंने तो कोई गेम मैंने नहीं खेला उसका। जब तक ये ऐसे और ज़्यादा बड़े सेशंस होते थे मेरे और फ्रेंड्स के, जब तक किसी चीज़ में पैसे इन्वॉल्व नहीं होते मैं करता ही नहीं। मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, टू वेरी ऑनेस्ट। साइबर कैफे में साइबर कैफे में सीओडी खेलते थे थोड़े बहुत। काउंटर स्ट्राइक खेलते थे रिलायंस वर्ल्ड जाके। हाँ, वेदन मतलब यही लड़ी सब डला। अभी अगर कहते तो आई लाइक टू गो आउट ए प्ले स्टिल, आई हैव अ ग्रुप व्हेयर आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। मतलब कुछ टाइम से नहीं जा पा रहा हूँ। बीइंग तो स्पोर्ट्स हो गए बेसिकली। और तो जैसे इंडोर गेम्स तो अभी फिलहाल कभी घर पे मोनोपोली कार्ड्स खेल लेते हैं, एंड पत्ते बहुत खेलना है पसंद दिवाली के तहीं। हम दिल्ली वाले हैं ना, और पत्ते मेरे बस जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं बहुत रोक का, और मुझे पसंद है। हम इसी बात दिवाली के पत्ता टीम है ये तो। हम तीनों रेट बढ़ाओ दिवाली को ही मुझे नहीं ना, माचिस की तिल्ली से खेलते हैं। मैं ट्रिप पे गया था, हम उसमें बस में खेल रहे थे माचिस की तिल्ली से, और मेरी जेब में कम से कम पूरी माचिस की तिल्ली रह गई थी। और अगले दिन जब मैं सुबह उठा घर पहुंच के,
तो भाई क्या कर रहे हो तुम, कौन सी चीजें कर रहे हो, नशे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो हमारे माचिस की तिल्ली से खेलते हैं, अक्षर का दो से नहीं खेलते, दो पैसों से नहीं खेलते, बस माचिस ही खेलते। सो तो बेरोने मूले है। सिर्फ वो भी माचिस की तिल्ली। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स सारे पसंद आ जाएंगे। तू फीफा में पैसे लगा देख, अभी कल आईडी बनेगी सबका था सब। moving towards the end. We'll end this here, and let's move on. Let's discuss key what is the future of this podcast, and what are we going to discuss in the probably next episode. And yes, then we can come back here again and discuss more about your say ourselves, and probably what is our vision, and how are we going to revolutionize the opinion trading industry with your say. So what next topic would you like to discuss? Probably next, I think The challenge is very एंड इस स्टेज तक आते आते हम लोगों ने क्या सीखा है अपनी और जर्नी से, तो वो गुड है क्या? क्या अच्छा देख रहे हैं वहाँ से एक्सपीरियंस, क्या बुरा है, क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते आ रही हैं यहाँ पर, हमारे में क्या कमियाँ थी कि वो बिजनेस 200-300-500 करोड़ का भी नहीं बन पाया, चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं। रियल मनी गेमिंग में बहुत स्पेस है. there is a lot of things that can come in. So India is revolutionizing in the gaming format in itself. So probably would be glad if our podcast help new entrepreneurs to come into real money gaming sphere. So with the current population that we had, so basically there are entrepreneurs everywhere. Probably they can learn the challenges that we have faced in these days. Probably they can minimize their time and get into this sphere. The idea is कि जितने लोग एक स्पेयर में काम करते हैं तभी वो चीज़ को वो पोटेंशियल उसकी दिखती है, तभी वो, और ये बहुत बड़ा मार्केट है. वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम हैविंग कॉम्पिटिशन, सो प्योरली हैविंग पीपल कमिंग इन. सो आई वुड रादर से राइट नाउ compete करने से ज़्यादा है कि वी शुड मेक this particular prospect a huge thing. So my idea of having this podcast for a 5, 6, 7 episodes is our journey from day one of starting to make yours say to a journey today when yours is ready to launch. जो बेसिक चैलेंजेस है, जो जेन्युइन चैलेंजेस है, जो आज भी चैलेंजेस है, जो आज भी हम फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस और जो चैलेंजेस और पीछे मिले हैं और जो हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि लोग अगर इफ दे स्पेंड 20-25 मिनट्स ऑन आवर पॉडकास्ट, प्रोबेबली दे होती है विजन ऑफ क्या उन्हें करना है और क्या नहीं करना है. क्या हमारी इंडस्ट्री में आज के में घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए, घुसे तो क्या आप चैलेंजेस आएंगे उनको, ये इनसाइट तो पूरी है ही. It might help someone. Okay, perfect. Then see you all next time.